को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं आज डॉक्टर स्मृति पाढ़ी, जो बालेश्वर उड़ीसा में फकीर मोहन यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अध्यापन कार्य कर रही हैं और आज के हमारी एक्सपर्ट भी हैं, मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर स्मृति पाढ़ी। धन्यवाद सर। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माश्रितशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, 26 नवंबर 1949 का दिन भारतीय इतिहास का वो पल है जब देश में संविधान को स्वीकार किया गया। लागू 26 जनवरी सन 1950 को हुआ, लेकिन देश की आजादी के बाद शायद वो संविधान ही था जिसने इस देश के नागरिक को उस आजादी का एहसास कराया। यह वह संविधान है जिसने हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का भान कराया। ये वो संविधान है जिसने हमें अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। किसी भी देश के लिए संविधान संभवतः उसके लिए एक बहुत अधिक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आज इसी संविधान दिवस के अवसर पर हम एक विशेष वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। भारतीय सिनेमा में किस तरह से संवैधानिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ने के पहले मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एम.एन. हुडा, जो स्वयं आईटी के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इसके आप संपादक हैं, और जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी ये मीडिया लेक्चर सीरीज के तहत 104वीं कड़ी है, जो जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ की जा रही है। भारतीय विद्यापीठ की इनिशिएटिव से यह यात्रा अब नए रूप में शुरू हुई है। मैं प्रोफेसर हुडा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आप सभी का स्वागत करें और अपनी बात कहें। प्रोफेसर एम.एन. हुडा। Good morning to everyone. At the outset, let me take this opportunity to welcome all the three valued speakers of today's sessions who, on the request of Professor Sanjeev Banawat, are part of this important day. Dear friends, we have Dr. Smriti Paढ़ी from Orissa, we have Ms. Shefali from ITB Bhopal, and we have Dr. Manish Jaisal from ITM Gwalior University, Gwalior. Dear friends, today's occasion is a very historic, very momentous, and very different for all of us.
because for a country, for its citizens, there is nothing more important than its constitution. And that is how we are celebrating this Constitution Day. All of you may be aware the Constitution Day, which is in Hindi is known as Samvidhan Divas, was earlier known as a Law Day. So it is also known even as on date the National Law Day. But on this 26th November, which is celebrated across the country on the instruction of the Government of India as a National Constitution Day, National Law Day, is primarily for the purpose to spread the importance of the Constitution and to spread thoughts and ideas of Baba Sahib Ambedkar, who is known as the father of the Indian Constitution. And along with him, there were many people as part of the Constituent Assembly of India who have taken part, deliberated the Constitution and given us such an exhaustive, such an elaborative Constitution, which keeps maintaining the entire fabric of the country. So it is a very important day to all of us. On this important day, I also take this opportunity to extend my warm greetings as a happy Constitution Day to all of you. Dear friends, as Professor Bhanawat has already said, that Ministry of Social Justice and Empowerment on 26th November 1949 recommended this Constitution, this day to be celebrated as the Constitution Day because it was adopted on 26th November 1949 by the Constituent Assembly of India. However, this Constitution came into effect from 26 January 1950, and that is why we celebrate 26 January as our Constitution, as our Samvidhan Day. In fact, the whole purpose, in fact, the Government of India has also started spreading this message that in all schools, the preamble of the Constitution should be read on 26th November. So the primary purpose is that if we have a Constitution, we do not respect the Constitution, we do not know when and with how much effort the Constitution was given to us, probably we will miss the spirit behind making such an elaborate Constitution, which is even as on date the best possible Constitution of the world. So I take this opportunity to welcome you all in 104th webinar series, particularly on this Constitution Day. And dear friends, please be reminded that when many organizations come together, they come together to add values, to add strength with it. So Communication Today and Bharati Vidyapeeth together have entered into this collaboration to present before you the media lecture series, which from time to time on various topics we are presenting. So in last 2 weeks, we have celebrated World Television Day, we have celebrated all other occasions, and every specific day we will keep on celebrating. Professor Bhanawat himself, the encyclopedia of media domain, is available with us. We have guidance and margdarshan of Professor Bhanawat, who will keep on helping us, keep on facilitating us to celebrate this. And purpose is not that for 1 or 1.5 hours we celebrate and then forget it. Purpose is that what we celebrate, what we discuss, what we deliberate, that should go deep into our day-to-day executions. If it goes deep in our day-to-day execution, then only the purpose of this will be met. So thank you so much for having joined. एंड जो अनाउंसमेंट प्रोफेसर बनावत साहब ने किया वो मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ. 2 बातें हैं. एक तो आज टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से मैक्सिमम 100 पार्टिसिपेंट्स वेबएक्स पे जुड़ पाएंगे. तो 100 के अलावा जो लोग हैं या किसी वजह से जो अभी जुड़े हैं और वो किसी नेटवर्क की डिफिकल्टी से डिस्कनेक्ट हो जाए और जब आप जुड़ना चाहें, जब यहाँ 100 का काउंट पूरा हो चुका होगा और आप नहीं जुड़ पाएंगे, तो लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे चल रही, जिसका लिंक भी उस इनविटेशन का पार्ट है. आप लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे देख सकते हैं. और आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए, जरूरी है, तो जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फीडबैक का लिंक शेयर किया जाएगा. जिनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी वो ये वेबएक्स रूम से लॉग आउट करेंगे. काउंट 100 के नीचे आएगा. जब 100 के नीचे काउंट आएगा तो आप फिर से जुड़ सकेंगे और यहाँ आपको वापस से फीडबैक लिंक दिया जाएगा, जिसे भर के आप अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं. दूसरी डिफिकल्टी ये है कि चूंकि ये सेशन एक स्पेसिफिक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह से ये वेबएक्स रूम चलाया गया है आज के लिए, तो ये 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा. जैसे ये डिस्कनेक्ट हो जाए, इसी लिंक पे जिस पे आप जुड़े हैं वापस क्लिक करके
जुड़ सकते हैं। जब आप जुड़ें तो वो सेफ पासवर्ड आपका ब्राउजर पूछ सकता है, उसे सेव कर दें तो आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा या ईमेल आईडी आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा और वो अनवेरिफाइड भी नहीं आएगा। So thank you so much. Wish you once again a very happy Constitution Day to all of you. Keep learning, keep disseminating knowledge, and knowledge is power when put into action. So whatever knowledge you get, keep applying them. All the best to you. God bless you. Over to you, Banavar sir. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कोड़ा साहब आपके इस प्रारंभिक उद्बोधन के लिए। और अब समय है हमारे सभी अतिथियों का ई बुके से स्वागत सम्मान करने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह से कि वे ई बुके के माध्यम से हमारे तीनों अतिथि हैं, आज के विशिष्ट वक्ता हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। इस आभासी दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, केवल आवश्यकता है उन सबको महसूस करने की। इस आभासी मंच पे दीक्षांत समारोह हो गए, दीक्षार्थियों ने अपनी डिग्रियां तक प्राप्त कर ली, और अब ये इस ई बुके के माध्यम से, और हुडा जी के शब्दों में कहूँ तो इन फूलों की खुशबू हम अपने घरों में, अपने कार्यस्थल पर बैठ करके भी महसूस कर सकते हैं, यदि उस भावना के साथ, उन सारी गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं तो। जैसा आज के दिन की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए हुडा साहब ने कहा कि इस संविधान को स्वीकार करने का जो ये ऐतिहासिक दिन था, उसकी स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह परंपरा शुरू होती है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने ये घोषणा की थी, और बाद में हमारा जो संबंधित मंत्रालय है उसने अधिसूचना जारी कर संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा है 2015 में शुरू की। संयोग से आज का दिन एक दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत सारे मित्रों ने, चूंकि हम सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं मुख्यतः, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का नाम सुना होगा, जो सागर में जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ संविधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य थे। आज उनकी बर्थडे भी है। संयोग से आज सुबह सोशल मीडिया पर हमारे एक मित्र ने एक डिग्री डाली है, जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़, चूंकि वो संस्थापक कुलपति थे, तो उनके हस्ताक्षर से जिस पहले विद्यार्थी को उपाधि मिली थी, उसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस और देश के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का जन्मदिन के रूप में भी है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, संविधान कैसे बना, कितनी बड़ी विशेषताएं हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बहुत सारी चीजें हैं, हम पढ़ते सुनते रहते हैं। लेकिन ये वो संविधान है जो हमारे लिए बहुत पवित्र है, और इस देश का पूरा संचालन इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। देश की संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व, मानवीय गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, यही सब कुछ तो निहित है संविधान में, और हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए, इन्हीं मूल्यों का अनुसरण करने के। हर संस्था, हर व्यक्ति, हर नागरिक कहीं ना कहीं इन प्रतिबद्धताओं के साथ जुड़ा है। ये दिवस इसीलिए आते हैं कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को समय समय पर जाहिर करते रहे। सिनेमा हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। हमारे जीवन संस्कारों, जीवन शैली के साथ सिनेमा अपनी इस एक सदी से अधिक की यात्रा में पूरी तरह घुल मिल गया है। सिनेमा के बहुत सारे दौर हमने देखे हैं या पुस्तकों में सिनेमा के इतिहास में पढ़े हैं। वो कुछ मिनटों की फिल्में, वो चलती फिरती आकृतियां, वहां से बढ़कर आज हम तकनीक की कौन सी दुनिया में पहुंच गए। न जाने कितनी तरह के विषयों पर काम हो रहा है। सरकारी योजनाओं तक पर बड़ी रोचक फिल्में बन रही हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसे। तो भला संवैधानिक मूल्य उन हमारे फिल्मकारों से कैसे छूट सकते थे? मुझे तो कई बार लगता है, जब मैं ये विषय को थोड़ा देख रहा था, पढ़ रहा था, तो आजादी से पहले भी उन मूल्यों को लेकर के हमारे यहाँ पर फिल्में बनाई गई। जिन मुद्दों को लेकर हमारे समाज सुधारकों ने आंदोलन किए, कहीं ना कहीं फिल्मों में भी
वो प्रतिबंधित हुए। 1936 में अछूत कन्या, हिमांशु राय और देविका रानी, एक ब्राह्मण और अछूत कन्या की प्रेम कथा पर केंद्रित ये फिल्म नीचा नगर, गरीबी अमीरी के भेद को मिटाने की बात। तो जाति पाति, गरीबी अमीरी या जिन मुद्दों से हम उस समय जूझ रहे थे, फिल्मकार ने उन पर भी आम आदमी का ध्यान आकृष्ट किया। और बाद में आजादी के बाद विमल रॉय की फिल्म सुजाता 1959 में सुनील दत्त और नूतन उस मुद्दे को एक अलग तरीके से उन्होंने उठाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इन फिल्मों ने या फिल्मकार ने, अभिनेता अभिनेत्रियों, पटकथा लेखकों ने कहीं इस देश की अस्मिता से जुड़ने का प्रयास समय समय पर किया। तो ये जो संवैधानिक आदर्श है जो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है, उस पर हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि फिल्मों ने किस तरह से उन मूल्यों को जीवंत बनाया। विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, या और पुरानी फिल्मों की बात करूं, राज कपूर की जागते रहो, बी आर चोपड़ा की नया दौर, गुरुदत्त की प्यासा, महबूब खान की मदर इंडिया, श्याम बेनेगल की मंथन, कृषक जीवन की व्यथा कथा, महाजनी लूट, ऐसा न जाने कितनी विकृतियां थी समाज में जिनको लेकर के फिल्में बनाई गई। यश चोपड़ा हमारे यहाँ इस प्रकार की पारिवारिक और सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़ी फिल्मों के रूप में एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध है। 1959 में फिल्म आती है धूल का फूल, तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है फिल्म। लेकिन कहीं कहीं मुझे यह भी लगता है कि फिल्मकार कभी इस तरह की फीलिंग भी देते हैं कि जब कानून व्यवस्था को, अब नायक जो है वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है। एक फिल्म का नायक एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराधी को या अभियुक्त को वही दंड दे देता है। तो वो जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उससे हट करके, तो क्या यह संवैधानिक मूल्यों के प्रति किसी प्रकार का आघात नहीं है? तो उन फिल्मों ने जहां संवैधानिक आदर्शों की, मूल्यों की रक्षा की है, वहीं कभी कभी ऐसा दौर भी आया है। न्यूटन नाम की फिल्म आती है जिसने मताधिकार या मतदान की जो बात है उसको किया, लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग्स भी मैंने पढ़े हैं जहां इस बात की और आलोचकों ने चिंता प्रकट की है, यदि इस तरह की भावनाओं को प्रचारित किया गया तो ये समाज में, समाज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, शांति सद्भाव के लिए घातक हो सकती है। इस प्रकार के विवाद कई बार हमारे सामने आते हैं। तो चूंकि फिल्में आम आदमी के जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो उनकी भावनाओं को प्रभावित करती है। रंग दे बसंती, मृत्युदंड, आरक्षण, चक दे इंडिया जैसी फिल्में महिलाओं को यदि अवसर मिले तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। आज हम रिजर्वेशन की और उन सब बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को फिल्मों ने उठाया है। आतंकवाद पर मणिरत्नम की फिल्म रोजा, दबंग, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां इन मुद्दों को मैं यूं कहूं कि थिंक, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट, सोचें, कहीं आपके जीवन प्रतिबंधित हो और फिर आप कार्य करें। तो 2 बीघा जमीन विमल रॉय की आई, जिसमें छोटे किसानों की जो जमीन है उस पर किस तरह से प्रहार किए गए, पूंजीगत व्यवस्था के खिलाफ कैसे माहौल बनाया गया। तो बहुत बहुत सारी फिल्मों की बात कर सकते हैं जिनकी विस्तार से चर्चा हमारे एक्सपर्ट करेंगे। लेकिन पृष्ठभूमि के रूप में मैंने कहा कि फिल्मों का हमारे यहाँ जो महत्व रहा है वो नकारात्मक भी है तो सकारात्मक भी है। आवश्यकता है इन मूल्य परक जो इस तरह की फिल्में बनी हैं इनको प्रोत्साहित करने की, कहीं चर्चा करने की। उसी उद्देश्य से हमने ये आज चर्चा जो है यहाँ रखी है। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर स्मृति पाढ़ी को। डॉक्टर स्मृति का मूल विषय जो है वो सिनेमा अध्ययन रहा है। लखनऊ से एमईटी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स उपाधि के समय उनकी इस विषय में रुचि जागृत हुई। और मेरा तो चूंकि एक बहुत लंबा जुड़ाव उनके साथ है, तो कई बार ऐसे मुद्दे आए सिनेमा को लेकर के, तो मेरी चर्चा इनसे होती रही। और फिल्मों के बारे में जिस तरह की, यूँ कहना चाहिए कि याददाश्त जो है, कौन सी फिल्म कब आई, क्या उसका कथ्य था, वो इनके बिल्कुल जुबान पे रहता है। यूँ जयपुर में इनका करियर शुरू हुआ। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत की। फिर आईसीजी एक कॉलेज है आईआईएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपने पढ़ाया। और उसके बाद अहमदाबाद की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक आपको काम करने का अवसर मिला। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया, उसकी नेशनल कमेटी में भी आप रही, उसका सिलेबस वगैरह तैयार किया। और वहाँ रहते हुए आपका एक जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था, लगभग आपने 200 एपिसोड्स तैयार किए, लगभग
20 से 30 मिनट तक के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स को विविध पक्षों को लेकर के। उस सीरीज के 2 एपिसोड में मुझे भी सहभागिता करने का मौका मिला था। वो स्पोर्ट्स की जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं और आधुनिक खेल है, उसको लेकर के जिस तरह से आपने खेल खिलाड़ियों के साथ बातचीत की, ग्राउंड पे जाकर जिस तरह से रिकॉर्डिंग की, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और वो कुछ वहाँ के जो चैनल्स हैं, उनके ऊपर भी रेगुलर टेलीकास्ट होते रहे। संयोग से चूंकि आप मुख्यतः उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, पढ़ाई आपकी यूपी में हुई, पीएचडी आपने महाराष्ट्र से किया, करियर की शुरुआत राजस्थान से की, तो मैं तो पूरा एक राष्ट्रीय चरित्र ही के उसमें देखता हूँ किस तरह से इन्होंने जगह जगह अलग अलग राज्यों की संस्कृति को देखने समझने का एक तरह से अनुभव लिया है। और अब आप अपने लगभग घर के पास बालेश्वर उड़ीसा, वहां पर फकीर मोहन यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ा रही है। और वहां भी एक नया प्रयोग आपने किया है, परिचय नाम से एक श्रृंखला शुरू की है अपने विभाग में। और विश्वविद्यालय में जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो राजनीति से जुड़े हैं, चाहे वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको वो अपने स्टूडियो में, अभी हाल ही में इनका स्टूडियो बना है, अपने स्टूडियो में ले जा करके उनकी उस एक्सपर्टीज पर केंद्रित वो आधे आधे घंटे के इस तरह के वीडियोस बना रही हैं। अभी आपने बालेश्वर की जो एसपी है उनका बहुत ही एक लाइव किस तरह से ग्राउंड पे जा करके और उनके जीवन पर केंद्रित वो एक इंटरव्यू लिया है जो काफी चर्चित रहा है। तो कहना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी आपकी है, यूनिवर्सिटी के सारे कार्यक्रम आप एंकर कर रही हैं। और सरस्वती वंदना, सिंगिंग, डांसिंग, सभी में आपकी रुचि रही है। परिचय दूंगा तो मैं तो पूरा, क्योंकि बहुत ही निकट का जुड़ाव रहा है और मेरे साथ यूनिसेफ और बहुत जगह काम किया है, तो विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं डॉक्टर स्मृति से अनुरोध करूंगा कि आज के विषय पर जो आपका अनुभव है, जो कुछ आप महसूस करती हैं आज के इस दौर में, वो हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर स्मृति पाटिल। और अगर सेशन बीच में डिस्कनेक्ट हो बहुत जाए बहुत तो धन्यवाद हाँ, सर। डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप दोबारा जुड़ करके कंटिन्यू कीजिएगा जी। बात। थैंक यू। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर. Such a elaborate introduction of mine that you gave. I'm really feeling privileged to have got your support all throughout, and your guidance all throughout. And this is really commendable that how continuously you have been able to organize the series of webinars. This is 104, so the number only reflects in itself the kind of commitment and dedication the entire team has. And I'm extremely privileged to be part of communication today, to have learned from you. Whatever I am is all because of your guidance, I must say, and I keep it saying on every platform. So the very outset, I thank Communication Today and Bharati Vidyapeeth New Delhi for organizing this beautiful webinar on such an apt theme. And what better date to have organized a webinar than the Constitution Day, that is today, as we celebrate the values that our Constitution, Indian Constitution, promotes. So, yes, Indian Constitution is indeed the supreme law of the land, and the different values that Indian Constitution has, like the sovereign values, socialist, secular, democratic, and republic. All of these values are have been portrayed time and again in through different themes in our Hindi films. Now, before going into the cinema that have touched upon these topics, let me, in very briefly, just 2 minutes I will take to just underline what these values actually mean. The term sovereign, which means that India is independent and it is not subject to the control of any foreign power. The term socialist emphasizes the commitment of achieving social and economic equality through different schemes, through different steps that civil society takes, government takes, bureaucrats take. Secular, which means that we respect different religions that thrive in this country, and India is the land जहाँ पे इतने सारे धर्मों का जन्म हुआ है, इतने सारे धर्म एक साथ यहाँ पे रहते हैं. तो जो हमारी फिल्में हैं वो किस तरीके से इस वैल्यू को डिपिक्ट करती हैं अपने themes में. And democratic, of course, which highlights the role of people of this country, of this nation, in this entire electoral process. And at the same time, Constitution also promotes justice, the value of liberty and equality amongst all caste, all creed, all kind of sects, all kind of gender. So I think that is the beauty of Indian Constitution, and it also promotes this value that every single individual, every single citizen, they are equal before the law.
And it also emphasizes on the sense of brotherhood and unity amidst different group of people who are living in this country. At the same time, it also gives us some fundamental rights, and it also underlines certain duties that every citizen of this country needs to follow. अब ये जो सारे वैल्यूज हैं, ये जो सारे थीम्स हैं, इन पर कई फिल्में बनी हैं. फ्रॉम इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, मोर देन 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा, टाइम एंड अगेन बहुत पुराने टाइम से लेकर के आज तक के जो फिल्में बनी हैं, कहीं ना कहीं ये सारे वैल्यूज उनके थीम्स में हम देख सकते हैं. एंड व्हाट आई फील इज कि जो हम हमेशा सुनते हैं कि फिल्में जो हैं, they mirror the society. What happens in the society, that gets reflected in cinema. And vice versa, that जो भी सिनेमा में हम देखते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं, लोगों का उठना बैठना आचरण कल्चर उससे इम्पैक्ट होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है. सो इट्स अ टू राउंड थिंग, इट्स अ टू वे थिंग. ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू. लेकिन हर समय की एक अपना एक माहौल था, एक अपना एक environment था. What I mean to say is that when India became independent, the problems that India was facing during that time, the poverty, infrastructure problems, health infrastructure उतना अच्छा नहीं था. We were struggling to bring literacy amongst people. बहुत सारे लोग साक्षर नहीं थे. Population control was a problem. Family planning हम कैसे लोगों को सिखाएं, कैसे sanitation के value सिखाएं, open defecation कैसे बंद करें. There were so many problems. 5-year plans नया लागू हुआ था. So the directors and the filmmakers of that time tried and made films on these themes. तो जब इन themes पे movies बनते थे, caste discrimination, untouchability आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले बहुत अधिक मात्रा में था. एंड लोगों के मन में वो बसता था, लोगों ने उसको आत्मसात कर लिया था. उनके पूरे जीवन का वो एक हिस्सा बन चुका था. नाउ टू टेल देम दैट इट इज रॉन्ग, समथिंग इज राइट, उनको वो चीज समझाना बहुत मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. सो इंडियन सिनेमा इज सच अ पावरफुल मीडियम. आज भी हमें याद है कि हम 4 साल 5 साल की उम्र में जो फिल्म हम देख के आए थे मम्मी पापा के साथ, आज भी हमें उसका टोन ध्यान है, उसकी याद है, क्या पहन के गए थे वो याद है. सो यू सी, सच इज द पावर ऑफ सिनेमा. बोल के उनको नहीं समझा पाते, जो बातें हमारी जनता ऐसे लिखने से या स्कीम से या कोई सोशल सर्विस से जो हमारे टीम्स जाके उनको नहीं समझा पाते, सिनेमा ने उनको वो चीज समझाया थ्रू स्टोरीज विच हैड सॉन्ग्स एंड डांसेस एंड म्यूजिक एंड द एंटायर one story was woven around that entire team. सो उसके माध्यम से जब लोगों ने वो चीजों को देखा, इस तरीके के स्टोरीज को देखे, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और वो एक्सेप्टेंस लेवल अच्छे से वो रहा. सो दैट वाज वेरी इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो सर वाज मेंशनिंग अबाउट दिस फिल्म सुजाता. So it brings a very vivid memory to me. So Sujata is the classic Indian film जो कि 1959 में रिलीज हुई, which was directed by Bimal Roy. And you see कि किस तरीके से जो मेन जो कैरेक्टर है सुजाता, वो जो लेडी है, it is played by Nutan, the renowned actress. Now she is a little girl who is adopted by a Brahmin family. तो वो पूरी बड़ी हो जाती है उस घर में, इस घर का सारा काम वो करती है, सबका ख्याल रखती है, फ्रॉम दवाई देना टू डूइंग ऑल टास्क्स ऑफ दैट हाउस. पूरे घर के सभी लोगों के जुबान पे उसी का नाम है, सुजाता सुजाता, ये लाओ, वो करो, ये कर दो. मतलब एंटायर फैमिली डिपेंड्स ऑन सुजाता. एंड देन when she falls in love with a Brahmin man, a Brahmin boy, जिसके लिए सुजाता की जो ओरिजिनल सुजाता उसको देखती है, तो जो एक्चुअल जो बेटी है उसके लिए उन्होंने पसंद किया है ब्राह्मण लड़की को. सुजाता falls in love with that Brahmin boy. The entire family forgets what she has done for this entire lifetime of hers. वो भूल जाते हैं. अचानक से सुजाता एक पर्टिकुलर लेवल से वो गिर के, वो सारा प्यार, वो सारा रिस्पेक्ट, वो कहीं बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है. सो इतना बड़ा. सो हाँ,
towards the family, और जब की जाने के बाद भी उसका dedication है फैमिली को कम नहीं होता है, बाद फैमिली को रियलाइज करती है एंड देन एक्सेप्ट कर लेती है उन दोनों के रिश्ते को. Now this is a love story, but around the love story the main theme is that of caste discrimination. So you see that these kind of movies, they have played such an important role. Sairat जो picture जो आई थी again 2016 में, which was a Marathi film, उसका हिंदी में भी उसको बनाया गया, और which was in lead role we saw Ishan Khattar and Janhvi Kapoor. उसमें you see again they have taken up this theme of caste discrimination. And last she commits suicide. I mean, she doesn't commit suicide. I mean, she's killed by her own family. The girl is killed by her own family just because she has married out of her caste. Similarly, Bandit Queen was such a talked about movie in 1994. Shekhar Kapoor ने जिसको direct किया, इस biographical जो film है, जो फूलन देवी जी के जो life पे निर्धारित है, it is centered around her entire life. You see, while it focuses on this other issues, उस पर्टिकुलर जो उस जगह के दूसरे सारे जो इश्यूज हैं उसको भी वो लेकर के सामने आती है, बट अगेन द फिल्म शोज दैट हाउ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज एट इट्स पीक in that particular area, and how the higher caste, upper caste people have exploited that lady. ऋत्विक घटक की जो फिल्में हैं, मेघे ढाका तारा, अगर आपने सुवर्ण रेखा देखी है तो उस समय पार्टीशन हुआ ही था, एंड मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स वेर बेस्ड ऑन दिस रिफ्यूजी कैंप्स, कि किस तरीके से लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो कैसे उन सारे समस्याओं को पीछे छोड़ के कैसे जीवन में वो एक अपने नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को. तो आप सुवर्ण रेखा जो एक नदी का नाम है एक्चुअली, उसके तट पर किस तरीके से ये एक परिवार की कहानी है, एंड देन उसकी जो एक बड़ा दर्दनाक एंडिंग है, एंड देन उसकी पूरी जो आप देखेंगे थीम के बीच में वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सेप्टेंस है नहीं इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के, एंड देन फाइनली लोगों की जाने गई हैं, लोग सुसाइड किए हैं या मर्डर किया गया है. Cinema, also friendly relation between two or more nations, friendly relations between two communities. I think they all can be promoted through our Indian cinema. The list is long, and I think there are so many things to talk about. I mean, एक पूरा दिन ही लग जाए, but then समय की अपनी एक सीमा है. इस छोटे से समय में I hope कि इस पूरे एक जो चर्चा को एक कहीं छोटा सा एक दिशा में दे पाई, इसी आशा के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहूंगी. Thank you so much for inviting me, and thank you so much for giving me your precious time. Thank you, Professor Hoda. Thank you, Professor Bhanawat. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मृति, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए. आपने अपने निर्धारित समय में किस तरह से फिल्मों ने जातिगत भेद और जो हमारा जेंडर इनइक्वलिटी है, लैंगिक असमानता, उनको दूर करने में महती भूमिका निभाई. फिल्में समाज के दर्पण के रूप में हमारी समकालीन समस्याओं को, समकालीन चुनौतियों को सकारात्मक ढंग से देखते हुए उस मानसिक बदलाव की प्रतीक हो सकती है. बहुत सारे फिल्मों के आपने उदाहरण दिए, उनके कथ्य को ध्यान में रखते हुए किस तरह से फिल्मों ने अपने उस आधार भूमिका को तैयार किया. बहुत बहुत आभार जिस तरह से आपने अपना वक्तव्य रखा. और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक टीवी जर्नलिस्ट को, वो किस तरह से फिल्मों को देखती हैं. शेफाली जी. शेफाली जी पिछले करीब 2.5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वे मध्य प्रदेश ईटीवी उसके साथ वर्तमान में जुड़ी हुई है. वहाँ की आप हेड के रूप में काम कर रही हैं. मध्य प्रदेश के अनेक प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ उनका जुड़ाव रहा है. वो न्यूज़ 18 में काम कर चुकी हैं और अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं विभिन्न रूपों में दे चुकी हैं. साहित्य और पत्रकारिता दोनों से आपका जुड़ाव है. पत्रकारिता के साथ साथ साहित्यिक विधाएं, कविता, कहानियां आदि जो क्रिएटिव जो हमारे एरियाज हैं उनमें भी आप लगातार लिख रही हैं. आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनको देश का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ENBA गोल्ड अवार्ड, उससे भी आपको सम्मानित किया गया है.
आप संविधान फेलो भी रह चुकी हैं। भोपाल का एक प्रतिष्ठित एनजीओ है विकास संवाद, सचिन जैन उसके मुख्य जो नेतृत्व दे रहे हैं। संयोग से पिछली भोपाल मुलाकात में मेरी उनसे, भोपाल प्रवास में उनसे मुलाकात हुई थी। वो इस अलग अलग एरियाज में काफी काम कर रहे हैं और संवैधानिक जो हमारा पूरा व्यवस्था है उसको लेकर के आप काफी समय से काम कर रहे हैं और फेलोशिप्स भी दे रहे हैं। तो शेफाली जी फेलोशिप से भी सम्मानित हो चुकी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। शेफाली जी। शुक्रिया संजीव सर। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ का बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए। पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और मुझे खुशी हुई कि मेरा नंबर आने के पहले हमने सिनेमा में जो संवैधानिक, क्या कहूँ कि मानवीय मूल्य कहाँ कहाँ स्थापित हुए, इस पर चर्चा की। और मेरा जो नजरिया है, चूंकि एक पत्रकार हूँ, तो मेरा नजरिया इस विषय को लेकर, संवैधानिक मूल्य और सिनेमा को लेकर, थोड़ा सा जर्नलिस्टिक ही रहा। हम ये कहते ही हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है, और समाज जैसा है वो सिनेमा में भी दिखाई देता है, और सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनता जाता है। और ये घुसपैठ इतनी धीमे होती है कि हमें अंदाजा नहीं लगता कि वो कैसे धारणा में तब्दील हो जाती है। अगर बात करें सिनेमा की 60 और 70 के दशक की, तो मुझे लगता है कि मानवीय मूल्यों को लेकर सिनेमा में तब काफी जागरूकता थी। जो फिल्में बनाई जा रही थी, चाहे फिर जागते रहो, मदर इंडिया जैसी फिल्में, वहां पर मानवीय मूल्यों का बहुत ख्याल रखा गया था। एक उदाहरण के साथ मैं यहाँ बताना चाहूंगी अपने समय की और आज तक बहुत चर्चित फिल्म है शोले। इस फिल्म का जो अंत है वो पहले इस तरह का होना था कि जो उसमें ठाकुर होते हैं उनके हाथ कटे हुए होते हैं, और वो आखिर में अपना बदला लेने के लिए कीलों वाले जूते पहनकर गब्बर को मारते हैं। गब्बर उन्हें तंज भी करता है कि तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम मुझे कैसे मार पाओगे। तो वो जूतों से, कीलों वाले जूते से उसको मारते हैं। लेकिन बाद में जब ये लगा कि ठाकुर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ये जो दृश्य था, ये जो अंत था, फिर बदला गया। और बाद में फिर पुलिस बकायदा गब्बर को पकड़ कर ले जाती है। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि उस वक्त तक 60-70 के दशक के सिनेमा को जब हम देखते हैं, तब ये स्थिति नहीं बनी थी कि जो नायक है वो ही सड़क पर फैसला कर रहा है, वो डॉन बन चुका है, वो कानून हाथ में ले रहा है। इस तरह की स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन जो मैंने शुरुआती लाइन कही कि सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो समाज में कैसे धीरे धीरे आता है, घुसपैठ करता है और धारणा में तब्दील होता है, इसके कुछ उदाहरण, चूंकि हम जब संवैधानिक मूल्य पर विकास संवाद के साथ फेलोशिप कर रहे थे, तो उसमें एक बड़ा मुद्दा जो आया जिसकी वजह से संवैधानिक मूल्य स्थापित नहीं हो पाते, वो धारणा थी। धारणा जो बन जाती है समाज की, फिर हम उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। तो पुलिस को लेकर भी लंबे समय तक सिनेमा में ये धारणा बनी रही कि वो आखिर में आती है। जब जब पूरा घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है। हालांकि इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, हमने कई बार देखा है कि जब नायक पूरे गुस्से में होता है और वो अपराध करने वाला होता है, उसी समय पुलिस की एंट्री होती है और वो कानून जो है हाथ में लेने से उसे रोक देती है। लेकिन इस तरह का जो परसेप्शन सिनेमा के जरिए बना, वो समाज में भी बनता गया और धीरे धीरे बाकी पर अविश्वास की एक वजह एक बड़े हिस्से में बनती गई। हालांकि मैं जनरलाइज करके ये बात नहीं कह रही, क्योंकि अभी स्मृति जी ने भी जितने उदाहरण दिए, इस दौर में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो बता रही हैं कि संवैधानिक मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की दृष्टि से ये फिल्में बनी हैं और चर्चित भी हुई हैं। लेकिन कमर्शियल जो सिनेमा है उसका बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर परसेप्शन जो है बनते चले गए। इसी तरीके से पंडितों को लेकर भी ये परसेप्शन बन गया कि वो पेटू होते हैं, लालची होते हैं। लगभग हर फिल्म में उन्हें इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया। तो ये जो धारणा की बात है, इसे तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और देखिए, आपकी जो मैं बात कर रही थी पुलिस की, कि नायक को डॉन जो है वो कानून हाथ में लेने लगा, तारीख पर तारीख जो डायलॉग शुरू हुए थे, ये संवाद शुरू हुआ, उसके बाद से समाज के भीतर भी ये धारणा बनने लगी कि कानून में देरी बहुत है, इंसाफ, ये हकीकत भी है, इंसाफ में बहुत देरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कानून हाथ में ले लिया जाए।
तो उसके साथ साथ ये हुआ कि डॉन जो है वो नायक बन गया, पुलिस खलनायक की भूमिका में आ गई और पुलिस भी फिर इनकाउंटर करने लगी। इनकाउंटर सराहे जाने लगे, सिनेमा हॉल में जो तालियां बजती थी वो समाज में इस तरीके से आई। तो ये एक जो है अनजाने में सिनेमा को हम अडॉप्ट इस तरीके से करते चले गए। दूसरी तरफ मैं इन फिल्मों में जो गाने जो लिरिक्स हुए हैं उनको लेकर भी खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगी। एक गीत है अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो इसमें देखिए कि जो नायक है वो एक एक दया का भाव दिख रहा है उसमें उस नायिका के लिए, और नायिका की का पूरा जो कैरेक्टराइजेशन किया गया या उसका जो वजूद है वो इस पर निर्भर है कि जब तक वो जवान है तब तक ही वो पूछी जाएगी। यानी वो अगर उसकी उम्र ढल जाएगी या दर्पण उसे डराने लगेगा तो फिर उसकी कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो अगर किसी का रंग रूप वैसा नहीं है, जो समाज के पैमाने होते हैं, मैं तो मन की सुंदरता को बहुत मायने देती हूँ, लेकिन समाज के पैमानों में जो मान्यता हो गई है कि अगर कोई स्त्री खुद को दर्पण में नहीं देख पाती तो क्या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या इस तरह के गीत इस सोच को बढ़ावा नहीं देते? एक गीत है कि भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो क्या ये एक्सेप्टेंस नहीं सिनेमा की तरफ से समाज में आई कि आप कैसा भी पति हो, चाहे फिर वो उसके साथ अच्छा बर्ताव ना करता हो, उसका ख्याल ना रखता हो, या उनके बीच एक साथी का रिश्ता या साझेदारी का रिश्ता ना हो, तब भी उसे देवता की तरह ही लिया जाए क्योंकि वो पति है। तो फिल्मों के जरिए जो इस तरह के लिरिक्स पर भी मैंने इसीलिए जोर दिया कि जो गाने लिखे गए वो वैसे के वैसे हमने देखा कि समाज के बड़े तबके में अपना भी लिए गए और मान्यता मिलती गई, एक रिश्ते को मान्यता मिलती गई। दूसरी तरफ सौतेली माँ, यानी अगर किसी स्त्री ने एक विवाहित पुरुष से शादी की है और साथ में उनको एक जिम्मेदारी मिलती है उनके पति के जो पूर्व की जो पत्नी रही है उनके बच्चों को संभालने की, तो सौतेली माँ को इस तरह से खलनायिका की तरह पेश किया गया कि समाज में अगर कोई स्त्री ऐसी जिम्मेदारी लेती है तो उसकी शुरुआत की जिंदगी का लंबा वक्त तो ये जस्टिफाई करने में गुजर जाता है कि वो सौतेली नहीं है, वो पूरा खाना देगी। मतलब फिल्मों ने तो ये बताया कि अगर वो किसी और की माँ है तो पहला मानिए कि वो खाना नहीं देगी उस बच्चे को और उसका कोई ख्याल नहीं रखेगी। तो ये जो मानस बनता गया और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उतनी जागरूकता नहीं आई कि समाज जो है वो सवाल उठा पाता या क्वेश्चन करके जो है सही गलत को माप सकता था। अभी भी जो फिल्में बन रही हैं अब जरूर ये थोड़ी सी कुछ हिस्से में ये जागरूकता आई है। जॉली एलएलबी जैसी फिल्में, शूल जैसी फिल्में, फिराक, अर्धसत्य और मोहन जोशी हाजिर हो तो खैर पुरानी फिल्में हैं। समानांतर सिनेमा के जरिए ये कोशिश होती रही, लेकिन अब भी कमर्शियल सिनेमा जो है वहां पर इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरी रिपोर्टिंग के दौरान का ही एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी एक वेब सीरीज बहुत चर्चा में है, द रेलवे मैन, और इसके जो मुख्य किरदार हैं गुलाम दस्तगीर साहब, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़े हुए हैं और से जुड़े रहे और मतलब मैं कहूंगी कि रियल हीरो, वो सच्चे नायक थे। उन्होंने 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात जब यहाँ दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई थी तो वो रेलवे स्टेशन पर अकेले मौजूद थे, भोपाल रेलवे स्टेशन पर, और ये कोशिश कर रहे थे कि कोई भी ट्रेन जो है वो हॉल्ट ना करने पाए भोपाल स्टेशन पर 5 मिनट से भी ज्यादा, क्योंकि जो यात्री हैं उन तक जो मिग गैस है उसका असर ना पहुंचे। और इस दौरान मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस आती है वहां पर, जिसका 25 मिनट का हॉल्ट होता है, लेकिन अपनी रिस्क पर स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर जो है उस ट्रेन को रवाना कर देते हैं। तो इसमें हुआ ये कि अब जो है उनके बच्चे जो हैं वो कानूनी नोटिस दे रहे हैं। वेब सीरीज यशराज फिल्म्स की है, उनको कानूनी नोटिस दे रहे हैं और नोटिस इस बात पर दे रहे हैं कि इस फिल्म में उनके पिता की जो कहानी है उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसमें ये बताया गया कि उनकी मौत हो जाती है, वो मरचुरी पहुंच जाते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं, यानी मसाला डाला गया, जबकि हकीकत ये है कि वो इतने जीवट वाले इंसान थे कि उस पूरी रात जहर को पीते हुए
वो हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन उसके बाद 19 साल तक वो जीवित रहे, कैंसर भी हुआ उनको। तो उनके जो परिजन हैं, उनके बेटे शादाब से मेरी बात हुई, हमने रिपोर्ट भी की इस पर। तो उनका ये कहना था कि जो कहानी, इस तरह की जो कहानियां होती हैं, ये समाज में आगे जनरेशंस तक इन्हें पढ़ती है, इनसे इंस्पिरेशन लेती है। तो कम से कम इस तरह की कहानियों के साथ तो इंसाफ होना चाहिए, जो सच्ची कहानी है वही पेश की जानी चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरी कहानी में कहीं टाइटल्स में ट्रिब्यूट नहीं दिया गया उस नायक को। तो कहाँ अगर मूल्यों के लिहाज से भी देखें तो बंधुता की जो बात थी, बंधुता का जो मूल्य था, किस तरह से गुलाम दस्तगीर साहब नायक बन गए। मुझे लगता है हम 50 रिपोर्ट्स भी करते हैं मीडिया में, तो शायद वो असर नहीं पड़ता जो अकेली एक द रेलवे मैन फिल्म से बन गया। तो असर जिसका होता है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, और उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसी तरीके से चीजें संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए समाज तक पहुंचाए। मैं ये मानती हूँ कि कमर्शियल सिनेमा में मिर्च मसाला भी जरूरी होता है, उनके पैमाने अलग हैं, उनको कहानी की डिमांड देखनी होती है, लेकिन फिर भी वो प्रश्न जो एक दर्शक तक जब पहुंचे सिनेमा के जरिए कोई संदेश, और वो गलत मैसेज ना हो, इसका तो ख्याल रखा ही जा सकता है। तो अभी मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि बड़ी ये अजीब सी बात है कि 60-70 के दशक में जो है मूल्यों को लेकर बहुत जागरूकता थी, और हर फिल्म में इस बात का ख्याल रखा जाता था। और जब हम काफी आगे निकल आए हैं उस दौर से, उसके बाद ये हो रहा है कि कमर्शियल सिनेमा में तो कम से कम इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो अब जरूरत है कि दर्शक जो है उसे जागरूक होना पड़ेगा। दर्शक को सिनेमा को देखते हुए ये तो ख्याल रखना ही चाहिए कि ये केवल सिनेमा है, लेकिन अगर इस तरह के संदेश जा रहे हैं तो उसको सवाल करना होगा। वी द पीपल करके एक संस्था है जिसकी मुझे जानकारी मिली कि वो इसे ही लेकर के सिनेमा के किन हिस्सों में सिनेमा के किस हिस्से में इस तरह का संवैधानिक मूल्यों को लेकर खिलवाड़ हुई है, इसको लेकर वो जागरूकता जगाते हैं आम लोगों के बीच में, और बताते हैं कि दर्शक जो है वो सवाल करना भी शुरू करे। और मुझे लगता है कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। एक तरफ जो निर्माता है, निर्देशक, लेखक, बहुत बड़ा समुदाय है सिनेमा का, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि वहां से जो इम्पैक्ट आता है, सिनेमा से जो इम्पैक्ट आता है, उसका असर बहुत लंबा भी होता है, गहरा भी होता है, जनरेशन तक जाता है। तो वो अगर थोड़ी सी जागरूकता इस विषय में रखेंगे तो मुझे लगता है कि संवैधानिक मूल्यों की स्थापना में ये एक बड़ा कदम होगा। और दूसरी तरफ दर्शकों के बीच भी इस तरह की जागरूकता आनी चाहिए कि वो जो दिखाया जा रहा है उस पर सवाल करना सीखें। मैंने पिछले दिनों विकास संवाद की फेलोशिप के दौरान जो है ये धारणा के ऊपर ही, और खासतौर पर बच्चों के बीच बनने वाली धारणा के ऊपर ही छोटी छोटी फिल्म्स बनाई थी, एनिमेशन फिल्म्स थी ये। और मैंने देखा कि जब हमने उसको एयर भी किया और बच्चों के बीच भी उसको मैंने दिखाया, तो मुझे लगा कि उसका असर ज्यादा था किसी लेक्चर से, किसी किताब से। सिनेमा जो है वो बहुत सशक्त माध्यम है, और एक छोटी सी बात जो है वो बहुत गहरा असर करती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि इस एनिमेशन फिल्म में एक फिल्म मैंने इस पर बनाई थी कि जब कोरोना का दौर था, उस वक्त एक खास समुदाय के लोगों से लोग फल और सब्जियां नहीं खरीद रहे थे। कुछ वायरल वीडियोस उस समुदाय को लेकर जो फर्जी वायरल वीडियो थे वो निकाले गए, और एक तरह का धारणा बनती गई कि उस समुदाय से हमको सामान नहीं खरीदना है। तो इस एनिमेशन फिल्म में बच्चा यही सवाल करता है, माँ रोकती है और बच्चा यही सवाल करता है कि फिर उन्हीं से हम सामान क्यों नहीं ले रहे। इसी तरह वो गंदे हैं, उनके साथ मत खेलो। तो वो क्यों गंदे हैं, उनके साथ क्यों ना खेलो, ये सवाल बच्चा करता है। और इस सवाल के साथ शुरू होता है ये चिंतन मंथन कि कहाँ हमारे संवैधानिक मूल्य टूट रहे हैं, कहाँ हम बच्चे को अनजाने में बिना उसके सवाल का जवाब दिए उसे एक धारणा में कैद करते जा रहे हैं। तो ये तो खैर छोटी सी एनिमेशन फिल्म थी, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन सिनेमा जो है वो तो बहुत बड़ा माध्यम है। और मुझे लगता है कि जैसे एक एक सामाजिक विषय को लेकर सिनेमा में अब काम हो रहे हैं, तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान राइटर्स को और लिरिसिस्ट को रखना चाहिए कि जब वो कोई गीत लिख रहे हैं, उसकी एक एक पंक्ति, उसका एक एक शब्द मीटर में है, धुन में कैसा है, वो उसमें लफ्ज कैसे हैं, कितने कैची हैं,
इसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखें कि उसके अर्थ क्या लिए जाएंगे। वैसे ये इतना दिलचस्प विषय है कि बहुत लंबी बातचीत इस पर की जा सकती है, लेकिन समय की पाबंदी है और जितना मुझे समय दिया गया था मैंने कोशिश की कि इस विषय पर छोटी सी खिड़की अपनी तरफ से खोल सकूं। हालांकि बहुत विद्वत यहाँ पर इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और उनको सुनना भी मेरे लिए सौभाग्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार शेफाली जी। आपने अपने संक्षिप्त समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं कि मुझे लगता है कि फिल्मों के हम कथ्य की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन उनके गीत और संवाद वो हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, हमारे मन मस्तिष्क को झकोर देते हैं। जिस तरह से आपने कुछ उदाहरण देकर के बात कही कि उन गीतों के माध्यम से हम समाज में किस तरह का संदेश देते हैं, ये प्रकारांतर रूप से हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ये जड़ें, या जिसको आपने धारणा या परसेप्शन की बात कही, कहीं उसको बहुत प्रभावित करते हैं। तो निश्चय ही हमें उस मनोविज्ञान को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण काम करना होगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण आपका जो पक्ष है जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया है, वो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, हमें सवाल करने होंगे। दर्शक के रूप में हम प्राय सवाल नहीं करते हैं, तो शायद सवाल करने की बात तो एक पत्रकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और आज तो हमारे पास सोशल मीडिया जैसे बहुत सारे मंच आ गए हैं जहाँ आप एनिमेशन जैसे तकनीक के माध्यम से आप काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का यदि माहौल हम बनाएंगे समाज के उस बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, तो शायद किसी बदलाव की आहट आने वाले में हम सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। इस बात में कोई दायरा ही नहीं कि दृश्य माध्यमों का विशेषकर अपरिपक्व पर अबोध मस्तिष्क के जो बच्चे हैं उन पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए एक एक शॉट किसी फिल्म का, एक एक शब्द, एक एक गीत, मुझे याद है जब महाभारत जैसे और रामायण जैसे धारावाहिक आते थे तो उसमें जो बोलते थे संबोधन में पिताश्री माताश्री, वो घर घर की शब्दावली हो गई थी। हम भी मजाक में इस तरह से बोलने लग गए थे। तो वो शब्दावली और शब्द तो हमारा एक तरह से, शब्द तो हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया, अक्षर को तो ब्रह्म कहा गया है। तो ये जो शब्द की ताकत है वो हमें बहुत गहराई से प्रभावित करती है। और फिल्म एक इतना सशक्त माध्यम है, वहाँ के जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उनको इस और बहुत ध्यान देना होगा। आपने बहुत ही गहनता के साथ इन चीज़ों का अध्ययन किया है। आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर मनीष जैसल को। मनीष जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है, वर्तमान में ये ग्वालियर में है, इसके पहले मंदसौर में थे। ग्वालियर के IMT यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं और मेरी पिछली ग्वालियर यात्रा में इनके विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला, इनके काम को देखने का मौका मिला और किस तरह से ये उस विश्वविद्यालय के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से एक सांस्कृतिक माहौल बना रहे हैं। उस समय मेरे लिए सुखद संयोग था जब इनके यहाँ गया, तो हमारे ग्रैमी अवार्डी जो हैं जयपुर के, उनको आपने वहाँ बुला रखा था और उनकी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। तो मनीष जी के उस काम को बहुत निकटता से मैंने देखा है और अभी बॉम्बे में जब मेरी इनसे विस्तार से बात हुई तब मैंने इनके व्यक्तित्व को बहुत गहराई से देखा, समझा। फिल्मों का इनका गहरा जुड़ाव है फिल्म अध्ययन के प्रति। एक सिनेमा के शोधार्थी के रूप में पिछले लगभग 1-1.5 दशक से भाई मनीष जिस तरह से काम कर रहे हैं वो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने PhD फिल्म और ड्रामा स्टडीज में किया, पत्रकारिता और पॉलिटिकल साइंस दोनों में आपके पास मास्टर्स उपाधि है। इसके अलावा भारतीय पाश्चात्य कला एवं सौंदर्य शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म मेकिंग, रूरल डेवलपमेंट, इसमें आपने PG डिप्लोमास की उपाधि भी प्राप्त की है। और अध्यापन से आने से पूर्व अनेक मीडिया जो हाउसेज हैं उनके साथ आप जुड़े रहे। देश बंधु, आई चौक, न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, आज जिंदगी आदि पत्रों के साथ जुड़ाव और एक फिल्म समीक्षक के रूप में आप इसमें प्राय लिखते रहे हैं। विशेषकर फिल्म लेखन, फिल्म मेकिंग और फिल्म समीक्षा, इन विधाओं में आपकी गहरी रुचि रही है। अकादमिक दृष्टि से भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है फिल्म क्षेत्र में, और UGC केयर लिस्ट में जो पत्र संकलित किए गए हैं, अप्रूव्ड हैं, मान्यता प्राप्त है, उनमें आपके काफ़ी शोध आर्टिकल्स छपे हैं। और जो प्रमुख पुस्तकें हैं आपकी, उसमें फिल्म सेंसरशिप के 100 वर्ष भाग 1 और 2, इसके अलावा मुजफ्फर अली फिल्मों का अंजुमन, पूर्वोत्तर भारत का सिनेमा, संस्कृति और राजनीति शीर्षक से
ये महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी फिल्मों पर अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सहपीडिया, यूनेस्को, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, इनके साथ भी अब रिसर्च फेलो और मीडिया फेलो के रूप में जुड़े रहे। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, नई दिल्ली के बुक फेलोशिप अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है। और विकास संवाद, जिसकी अभी अपनी बात हुई थी, शेफाली जी भी उसकी संविधान फेलो हैं, और डॉक्टर मनीष को भी वो फेलोशिप मिली है। और फिलहाल आप इसी संवैधानिक मूल्य और सिनेमा, इसी विषय पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और वस्तुतः जब बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई थी तो इस विषय का आइडिया ही मुझे उन्हीं से आया था कि इस विषय पर हम कुछ बात कर सकें और विस्तार से काम कर सकें। बम्बई प्रवास में उन्होंने फिल्म क्षेत्र के कुछ दिग्गजों से भी इंटरव्यूज लिए थे, और इस विषय को समझने के लिए उसके और परतें किस तरह से खुल सकती हैं उन फिल्मकारों के साथ जो आपका संवाद हुआ, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात हुई थी। शेफाली जी से भी परिचय मनीष जी ने ही कराया है और उनको यहाँ आमंत्रित किया। तो जिस तरीके से उन्होंने सिनेमा अध्ययन जैसे विषय को देखा, महसूस किया है, और जो शोध की है, कर रहे हैं, उसके जो आपके अनुभव हैं वो हमारे साथ को साझा करें। मैं खुदा सर का बहुत धन्यवाद कि आपने ये नेशनल लेवल का मुझे मंच ये दिया है। बात इसलिए भी ज़रूरी है इस विषय पर बात करने की, क्योंकि जो संवैधानिक मूल्य हैं, वो कई बार हम सिनेमा में तो देख ही रहे हैं, सिनेमा में मूल्य मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जीवन में संविधान क्या कभी उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक जीवन में संविधान नहीं आएगा, हम चाहे किसी भी मीडियम की बात कर लें, चाहे वो मीडिया की बात कर लें, सिनेमा की बात कर लें, वो कभी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे जब तक वो जीवन में संविधान नहीं आएगा। मैं एक वाक़या याद कर रहा था, ऐसे ही दिमाग में आया कि घर पर एक घर शिफ्ट हो रहा था मेरा, तो जो शिफ्ट करने वाले लोग आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि वो मज़दूर होते हैं। तो एक किचन था, किचन के पास में पानी रखा होता है सबके घरों में, तो उससे मैंने ही बोला कि जो है पानी ले आएँगे क्या आप? तो वो हिचकिचा रहा था, किचन में घुसने से। हम किसी के घरों में हम अमूमन अपने दोस्त यार जब गैर जो हम बराबरी की बात करते हैं, अगर हम बराबर हैं एक-दूसरे से, तब तो हम किसी के किचन में आराम से घुस सकते हैं। लेकिन एक जो मज़दूर है, वो आपके घर का सारा काम कर रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वह गैर बराबरी है और वो हमारे बराबर का आदमी नहीं है। तो एक तो ये मामला हो गया कि हम गैर बराबरी को खुद से ख़त्म करें। हम कोशिश करें कि हमारे घर में आने वाला व्यक्ति जो लोअर दर्जे का माना जो जिसको हम मान रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान ने किसी को छोटा-बड़ा नहीं माना है। उसकी अपनी एक एक दायरा है कि हर व्यक्ति बराबर हैं। लेकिन सिनेमा कई बार उस गैर बराबरी को और बढ़ा देता है। उसका एक सबसे ताज़ा उदाहरण आप सबके बीच रखूँगा। एक फ़िल्म आई है कटहल, मुझे लगता है आप सभी ने देखी होगी, और वो फ़िल्म कटहल की जो महिमा बसोड़ है, जो एक मध्य प्रदेश की ही कह सकते हैं कि बसोड़ समुदाय की आदिवासी महिला है और वो इंस्पेक्टर है। आदरणीय अशोक मिश्रा जी इसके राइटर हैं। उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनाई हैं, लिखी हैं, जो श्याम बेनेगल जी के साथ में एक विश्व प्रसिद्ध फ़िल्में बनी हैं। तो उनकी एक ताज़ा फ़िल्म है ये, और उनके बेटे यशोवर्धन मिश्रा ने इसको डायरेक्ट किया है। मेरी मुंबई में हाल ही में एक मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था इसी विषय पर। तो मैंने वो बात जब उनसे पूछी कि ये फ़िल्म क्यों? मध्य प्रदेश के एक ऐसे समुदाय की कहानी को आपने उठा करके और वर्तमान स्थिति को जैसे जिस तरीके से उन्होंने समेटा है, वो अपने आप में ये बताता है कि दौर कुछ भी हो, अगर लोग चाहेंगे, अगर लोगों की संवैधानिक या मूल्य अगर उन पे ताज़ा हैं या वो चाहें, तो कुछ भी कर सकते हैं। हम बार-बार कमर्शियल सिनेमा का नाम दे करके हम अपने आप को हटा लेते हैं कि कमर्शियल सिनेमा आ गया है, बिना पैसे का सिनेमा नहीं बन सकता, या पैसा अगर वो चीज़ें नहीं डालेंगे मसाला तो हम फ़िल्में नहीं बना पाएँगे या पॉपुलर नहीं हो पाएँगे। इस चक्कर में हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो कटहल चोरी की घटना, हमने जूता चोरी, हमने भैंस चोरी, हमने बहुत सारी ऐसी फालतू की चीज़ों वाली कहानियाँ सुनी हैं आम समाज में, लेकिन वो फ़िल्म कटहल चोरी की घटना है। एक विधायक का कटहल चोरी हो जाता है और वो वहाँ से उन्होंने जो छोटी-छोटी क्लिप्स में जो बात रखी है,
वो लगता है कि संवैधानिक मूल्य सिनेमा में जिस तरीके से उतार करके उन्होंने समाज में दिखाया है, भले ही उसमें लाख बुराइयां हो सकती हैं, सिनेमा देखने वाले लोग उसको अलग से क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मैं उनके कुछ कुछ सीन्स को अगर मैं देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि एक लड़की जो बसोर समुदाय की है वो इंस्पेक्टर है, और एक ब्राह्मण लड़का जो कांस्टेबल है, दोनों को अफेयर होता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, और वो अपनी सोसाइटी से लड़ते हैं, लेकिन वहां भी वो मानवीय जो भावना है, लड़की कैसे कंप्रोमाइज करती है, वो भी एक सीन देखने वाला है उसमें। वो लड़की कहती है, उसको प्रमोशन मिलने वाला होता है, वो इंस्पेक्टर से डीएसपी वगैरह बनने वाली होती है, तो वो कहती है अपने जो बॉस से कहती है कि सर वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है, ये जो कांस्टेबल है, आनंद जोशी बने हुए हैं उसमें कांस्टेबल, तो उनसे कहती कि उसको दे दीजिए प्रमोशन, क्योंकि हम बराबर हो जाएंगे तो घर वाले शादी कर देंगे। वो लड़की कंप्रोमाइज करने को तैयार है, क्योंकि वो उसको पता है कि समाज में ये दशा है कि उसके घर वाले, एक तो वो ब्राह्मण है, एक तो वो अपर कास्ट है, ऊपर से वो बसोड़ समुदाय की, वो लोग कह भी रहे हैं कि आप बसोड़ के यहाँ शादी करोगे, वो वही तुमको मिली है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा। और ये सब बहुत आम चीजें हैं, हम अपने बोलचाल की भाषा में भी इस तरीके के शब्द यूज करते हैं कि जो है वो हमारे बराबर की नहीं है या जो भी है। तब हम संविधान दिवस के दिन बैठ करके चर्चा करें और सोचें कि हमारे आसपास कितनी गैर बराबरी है। हमें लगता है कि हमें जीवन में संविधान उतारने की जरूरत है। तब हम जब जीवन में संविधान उतारेंगे, सोचेंगे, तब हम जो सिनेमा देख रहे होंगे, जो फिल्में देख रहे होंगे, जो क्लिप्स देख रहे होंगे, जो रील्स देख रहे होंगे, तब हमें थोड़ा थोड़ा एहसास होगा कि ये गलत है। मैं कुछ पुराने की तरफ बढ़ता हूँ कि जब आज़ादी के बाद का सिनेमा कैसे बढ़ते हुए आज की सदी तक आया है, तब मुझे याद आ रही हैं कुछ फिल्में। जागृति 1954 की एक फिल्म आपको एहसास दिलाती है कि ये सोसाइटी, ये समाज कैसे होना चाहिए। वो एक स्कूल की कल्पना बताता है, वो बताती है एक फिल्म कि उस स्कूल में एक विकलांग भी पढ़ सकता है, एक दूसरी कास्ट का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। एक हॉस्टल की कल्पना रखी गई कि एक हॉस्टल बनेगा तो वहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी अलग-अलग धर्मों और पंथ संप्रदाय के लोग आकर के वो हॉस्टल में रहेंगे, तो लोग बटेंगे नहीं, धर्म का विभेदीकरण नहीं होगा। तब वो हॉस्टल की परिकल्पना मैं उस जागृति फिल्म से देखता हूँ, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की उसमें बात जो मैं समझ में आती है, मुझे लगता है कि वो जागृति फिल्म हम सभी को देखनी चाहिए। कुछ उसके सीन्स अगर दिमाग में बैठ जाएं, तो मुझे लगता है कि जो हम व्यूअर हैं सिनेमा के, क्योंकि हम बहुत चलताऊ लोग हो गए हैं कि हमने वो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड का जो रील्स देखने वाली जो पीढ़ी है, उसको अब वो कंटेंट तो मिलेगा नहीं, लेकिन शायद जो पुराने फिल्मकारों ने एक लंबा एक एक्सपीरियंस अपने साथ रखा है, और उसको सोचते हुए उन्होंने फिल्में लिखी और फिल्में डायरेक्ट की, तो आज के समय में वो बहुत क्विक हो गया कि बस जल्दी से दिखाइए और आगे बढ़िए। तो धरती के लाल फिल्म देखिए आप, धरती के लाल में भी जिस तरीके से सोशल जस्टिस की बात की जा रही है और कम्युनल हार्मोनी की जो बात की जा रही है, वो आज के समय में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो नए तरीके का कम्युनल हार्मोनी हो गई है, एक नए तरीके का कम्युनिज्म हो गया है, नया तरीके का धार्मिक सद्भाव आपको समझ में आता है। आपको कई बार वो दिखाया तो जाएगा कि जो है 2 धर्म हैं, लेकिन इतनी लंबी खाई है, इतनी बीच की खाई इतनी बड़ी गहरी हो गई है कि आप उसको पाटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज की फ़िल्मों को देख कर के आप फिर लोगों को लगने लगेगा कि सिनेमा ऐसा ही बनता है, सिनेमा ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा मैं आऊँगा अभी आगे की बात में कि सिनेमा हम तक पहुँचता कैसे है? तो जब वो पहुँचने का प्रॉब्लम जो है, जो स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम भारत में है, 2000 फ़िल्में बनाने वाला देश, हम मुश्किल से हर हफ्ते 3 या 4 फ़िल्में अपने सिनेमाघरों में देख पाते हैं। बाकी फ़िल्में कहाँ जा रही हैं? क्या वो सिनेमा देखना भी अपने तरीके का एक राइट है? मुझे अच्छा लगता है कि जब से डीवीडी कल्चर आया और सीडी कल्चर आया, या आज के समय में जो अपने पास में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आए, इससे वो ईज़िली एक्सेसिबल हो गया सिनेमा देखना। नहीं तो ₹20, ₹30, ₹40 दे करके सिनेमा देखना आम आदमी के बस की बात तो नहीं थी। जब वो आम आदमी के बस की बात नहीं थी, तो सिनेमा जिनके लिए आप बना रहे थे, जिनके लिए एक लंबी दूरदर्शन पर फ़िल्में जो बन रही थी, सिनेमा टीवी नहीं था उस दौर में तो। 70 के दशक में जो फ़िल्में टीवी में दिखाई जा रही थी, अ, सैम बेनेगल और बहुत सारे लोग जो समानांतर सिनेमा दिखा रहे थे, उस समय तो टीवी ही नहीं था। जिनकी कहानियाँ थी, उनके घरों में पहुँच ही नहीं पा रहा था। 90 के दशक में जब टीवी और बहुत सारी चीज़ें आने लगी, और आज भी एक्सेसिबल नहीं है उन परिवारों में जिनकी कहानियाँ उन्हें दिखानी है। तो एक तो पहुँचने का भी दायरा है। मैं नया दौर की बात करूँ अगर, तो नया दौर में आप देखिए किस तरीके का नया भारत कैसा होना चाहिए। नया दौर में आप देख सकते हैं। आप अगर
एक और फिल्म का मैं नाम ले रहा हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में एक फिल्म आई थी मुल्क। मुल्क में जिस तरीके से क्रिमिनल की बात हो रही है, वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हम कोर्ट रूम ड्रामा को सिर्फ अब जॉली एलएलबी और इस तरीके की फिल्मों से देख करके हंसी मजाक में निकल जाते हैं। कई बार तो मुझे जो टीवी जो न्यूज चैनल है उसका जो जिस तरीके से आपके सामने कोर्ट रूम दिखाया जाता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि कोर्ट रूम ऐसा भी होता है क्या, जहाँ जज ही गाना गाने लगे। वो मैं पिछले कुछ दिनों पहले देख रहा था कि जो है जज गाना गा रहे हैं एक शो में बैठ करके। ठीक है, अच्छी बात है, वो कोई भी अदालत हो सकती है, लेकिन वो गाना नहीं गा सकता जज। मैंने तो नहीं देखा। आम परिवार के लोग जो कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहां इस तरीके का जज कभी नहीं देखा, ना इस तरीके का वकील कभी देखा होगा। लेकिन जो हम सीख रहे हैं सिनेमा से, वो फिर जब सोसाइटी उसको इम्प्लीमेंट करेगी अपने ऊपर, तब इश्यूज बनेंगे। मैं चुलबुल पांडे को याद करता हूँ, जो किसी को भी मार सकता है, वो मुझे सिनेमा ने बताया। अब मैं सोचता हूँ कोई पुलिस वाला किसी को भी मार सकता है, कोई इंस्पेक्टर किसी को भी मार सकता है, ये मैंने सिनेमा से सीखा। क्योंकि मेरे आसपास का कोई व्यक्ति जो मैं डर रहा हूँ कि सिनेमा में तो ऐसा होता है, चुलबुल पांडे कुछ भी कर सकता है। मैंने दृश्यम देखी है कि 4 पुलिस वाले घर से किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन संविधान किसी को उठाने की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर में बिना जाए उठा लें आप किसी को। तब आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, जो शिफाली जी कह रही थी कि सवाल हमें दर्शकों को उठाने पड़ेंगे। आप जब हम देखते हैं कि कोई घटना घट रही है, तो पुलिस वहां पहुंचती जरूर है, लेकिन पुलिस का दबदबा इतना होता है, पुलिस सरकार और पुलिस जो है वो जरिया है, वो डिसीजन मेकर नहीं है। वो तुरंत आपको जो है कोर्ट रूम, वो कोर्ट नहीं है कि वो फैसला दे देगा, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने से पहले कितने फैसले हो जाते हैं हम सब जानते हैं। और ये इतना एक बन चुका है माहौल पूरे देश भर में कि हम बहुत तैयार हैं इसके लिए कि नहीं, पुलिस आएगी तो बीच में पूरा सब सेट कर देगी। मैं कुछ दिनों पहले एक केस देख रहा था, क्योंकि मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि सिनेमा के अलावा समाज के भी कुछ मुद्दे उठाए जाएं। तो एक लड़की के साथ एक घटना होती है और वो पुलिस में उसकी एफआईआर भी हो जाती है। अब वो हो जाती है, उसके बाद वो बार-बार पूछ रही है कि इसमें क्या हुआ, क्या हुआ? तो कह रही नहीं, अभी वो जो चश्मदीद हैं उनसे बातचीत चल रही है, पुलिस कह रही है। तो पता चला कि जो है, जो अभियुक्त है, वो पैसे दे करके सेट हो गया पूरा मामला। तब हमारा सोसाइटी, तब हम लोग, क्योंकि जब तक वो हमारे अपने के साथ नहीं होता है, तब तक हमें वो दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए मैं बार-बार अपनी बात को कह रहा हूँ कि हम संवैधानिक रूप से हम अपने समाज के जो नियम कायदे बने हुए हैं, उनमें अपने आप को देखें, अपने आप को रख करके सोचें। तब किसी भी जो हमारा कह सकते हैं मीडियम है, तब हम उसको समझ पाएँगे। मेरे ज़हन में एक और फ़िल्म आ रही है, उपकार। उपकार बताती है कि भारत का भविष्य क्या होगा। हम वहाँ से बहुत सारे जो गाने हमारे सामने आए, जिस तरीके से मनोज कुमार की वो फ़िल्म है, जिस तरीके से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना भरी गई, आज की फ़िल्मों में वो देशभक्ति की भावना अलग तरीके की है। वो हमारी देशभक्ति की नहीं है, वो दूसरे देश के खिलाफ जाने वाली भक्ति हमें ज़्यादा बताई जा रही है, कि हमारा अपना भले विकास हो ना हो, लेकिन हम दूसरे का विकास हम बता देते हैं कई बार कि पाकिस्तान तो हमारे, जितनी जीडीपी हमारी उत्तर प्रदेश की है, जितने उत्तर प्रदेश में लोग हम खर्चा करते हैं पटाखे में, उतने की तो पाकिस्तान में पूरी हम वो उसकी वो है। हम यहाँ से उसको पेट्रोलिज्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से हम वहाँ से इसको कैटेगराइज़ करने लगते हैं। और हमने ये सब सीखा है फ़िल्मों से। और फ़िल्में नहीं हैं तो कम से कम उसके रील्स, जो आजकल क्योंकि फ़िल्मों के मैसेज को हम रील्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं आज। नया स्वरूप हमारे सामने आ गया है। तो हमें वहाँ भी उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हमारे सामने मूल्य नहीं है। हमारे सामने वो मूल्य को समझने की ताकत नहीं बची है आज। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि संवैधानिक जो संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग इन समानता और स्वतंत्रता, संपूर्ण संप्रभुता, एकता, अखंडता, समाजवाद, मानवीय गरिमा, बंधुता, इन मूल्यों को समाज में हमने आत्मसमर्पित किया है। नहीं तो वो दिन मुझे याद आ रहा है, जब 25 नवंबर को
49 को जब संविधान सभा की जब बैठक होती है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर कहते भी हैं कि किसी भी देश के संविधान की सफलता उस देश के नागरिकों तथा संविधान को चलाने वाले लोगों के चरित्र पर निर्भर करेगी। तो हमारा चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। हम किस तरफ जाना चाहते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। उसकी नियत पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि चरित्र और नियत पर निर्भर करती है। तो नियति हमारी है क्या? हम किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं? ये देश तो सर्वधर्म समभाव का देश है, लेकिन हमने तो बार-बार मीडिया की क्लिप्स में दूसरा कुछ देखा है। मैं क्योंकि पब्लिक फोरम है तो मैं यहाँ अपनी बात उस तरीके से नहीं रखूँगा, लेकिन सब आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन उसके चलाने वाले लोगों में संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पण नहीं होगा, तो या उसे लागू करने की जो है अगर चेष्टा नहीं होगी, तो ये सिर्फ अक्षरों में लिखा हुआ निर्जीव सा एक तथ्य बन जाएगा और हम उसे कभी भी बदल नहीं पाएँगे। तभी हम आज बार-बार हम एक बात कहते हैं कि 75 साल हो गए संविधान को, उसमें आरक्षण मिला है और आरक्षण का जो आज नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। लेकिन मैं उसमें ये भी कहता हूँ कि आज जब 75 साल हो गए हैं, तभी उसी समुदाय के लोग आज कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। मैं जिस एमपी में रहता हूँ, वो सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है और यहाँ के हालात आदिवासियों के कैसे हैं, आप सबसे छिपे नहीं हैं। लेकिन मैंने कोई ऐसी फ़िल्म नहीं देखी कि जो आदिवासियों के जो रियल हक हैं, जो उनकी दशा है, जो उनकी सम्मान की बात है, वो कभी दिखती हो। मैं आदिवासियों के नाम पे सिर्फ़ मैंने देखा है कि उनके सींग लगी होती है, उनका पहनावा अजीब-सा होता है। बस वो मैंने उस तरीके का कॉन्सेप्ट देखा है कि वो उनके जहाँ वो एरिया में रहते हैं, वहाँ पर वो दंगे हो जाते हैं, वहाँ पर किसी तरीके का घटना घट जाती है, बस मैंने वही देखा है। उनके मुद्दे नहीं देखे। लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है, ऐसे 8 प्रदेश हैं, जो क्योंकि मैंने पूर्वोत्तर के राज्यों पर काम किया है, वहाँ पर एक लड़का जो 25 साल का एक लड़का है, केजांग थोंगतोक नाम का एक लड़का, अपने आखिरी समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, उसके लिए सिनेमा बना रहा है। ली चिपो नाम की एक फ़िल्म बनाता है और वो बताता है ली चिपो नाम की इस फ़िल्म में कि मेरे समुदाय के जो आखिरी लोग हैं, इसके बाद हनी हंटिंग का जो रोज़गार उनका हुआ करता था, जो एक पुराने समय से चला आ रहा था, वो हनी हंटिंग खत्म हो जाएगी और उसके समाज के लोग अब कभी हनी हंटिंग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो उसने उस हनी हंटिंग के काम को उस केजांग ने कैमरे में कैप्चर किया, उस पर एक फ़िल्म बनाई, उसको डॉक्यूमेंट्री में तब्दील किया और वो हमारे सामने देश के सामने उसे रखता है और उसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 में उसको दिल्ली में मिलता है और तब वो 25 साल का लड़का, उसके सामने संकट कितने गहरे हैं, उसके सामने चैलेंज है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के असम में, चाहे मेघालय में या अरुणाचल में आप देखिए, सिनेमा बनाने की कोई टेक्निक नहीं है उनके पास में, कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है सिनेमा दिखाने की। अरुणाचल में तो बहुत बुरे हाल हैं, 5000 लोगों पर एक डायलेक्ट है, बदल जा रही, 5000 लोगों के लिए सिनेमा बनाएगा कोई? 100 करोड़ का सिनेमा बन रहा है आज की डेट में। मान लीजिए आप कितनी भी कम में फ़िल्म बनाएँगे तो 10-20 50 हज़ार रुपए लगेगा और जब वो 10-20 50 हज़ार रुपए लगा कर के कोई सिनेमा बना रहा है, तब वो फ़िल्म जिसके लिए बना रहा है, वो अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है और मूल्यों के साथ भी अगर कोई बना रहा है, तो वहाँ भी एक सवाल है कि आप सिनेमा को पहुँचाने के लिए, सिनेमा को जो लोग देखें, वहाँ तक भी सरकारों को आगे आना होगा। मैंने जब अपनी पीएचडी सेंसरशिप पर की, तो वहाँ से कई सवाल मेरे ज़हन में उठे और वो सवाल भी बहुत ज़रूरी हैं संविधान दिवस के मौके पर बात रखने के लिए। सिनेमा आपके पास आ कैसे रहा है? 4 लोगों की कमेटी डिसाइड करती है कि इस फ़िल्म को ए सर्टिफ़िकेट मिलेगा, यू मिलेगा, यूए मिलेगा या कौन-सा सर्टिफ़िकेट मिलेगा? क्या वो 4 लोग जो कमेटी के मेंबर हैं, क्या वो इस फ़ील्ड के बारे में जानते हैं? क्या वो सिनेमा बनाने के तरीके को जानते हैं? जब ये रिसर्च की तो पता चला कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार के पास में है, सरकार से उसका जुड़ाव है, और कोई भी सरकार हो सकती है। आज 1918 में सेंसरशिप भारत में लागू है और उसके बाद फिर 55 में बनती हैं, बहुत सारी कमेटियाँ बनती हैं, उनमें सबकी आज तक मैं बात पूरी रख रहा हूँ कि जो सरकार सत्ता के पास में है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है भारत में, जो प्रमाणन बोर्ड है सीबीएफसी, उसके एडवाइजरी पैनल में शामिल हो सकता है और वो एडवाइजरी पैनल की कोई अर्हता आज तक नहीं है
कि वो किसी ने फिल्म बनाई हो या ना बनाई हो, या स्क्रिप्ट के बारे में जानता हो या ना जानता हो, लेकिन जब वो सिनेमा देख रहा होगा, जब वो कोई फिल्म देख रहा होगा चेक करने के लिए कि इसको कौन सर्टिफिकेट दिया जाए, तो वो तो अपने विवेक के आधार पर लेगा। मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं कोई मुस्लिम वाली फ़िल्म देख रहा हूँ, जो मुस्लिम विषयक फ़िल्म है, उसमें रियल स्टोरी बताई जा रही है, तो मैं वहाँ ऑब्जेक्शन करूँगा कि नहीं, नहीं, ये हमारे समाज को दूषित कर देगी। हो सकता है कि ये पक्षपात, ये बायसनेस जो रियल सिनेमा है उसको रोक दे, और देश में आज यही हो रहा है। ओह माय गॉड जैसी फ़िल्म, जो मैंने लास्ट टाइम मैं अभी गया था, आपसे मिला भी था सर, संजू सर। मैंने ओह माय गॉड 2 के डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, अमित राय। वो बहुत सिंपल सा फ़िल्म मेकर है वो, उसका किसी भी पार्टी से, कोई विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने जो ओह माय गॉड 2 बनाई, बहुत रियल विषय है वो हम सबके बीच का विषय है। और उसने फ़िल्म बनाई बच्चों के लिए, 18 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीबीएफसी ने उसे ए सर्टिफ़िकेट दिया और 18 साल से कम उम्र के बच्चे उसे देख ही नहीं सकते। तब हमें इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या संवैधानिक मूल्य जो हम दर्शकों पर तो थोपे जा रहे हैं कि ठीक है, दर्शक उसमें देखें, मूल्य देखें, नहीं देखें, डायरेक्टर उसमें रखें, ना रखें, लेकिन सरकारें क्या डिसाइड करेंगी? सरकार क्या इसमें कोई दखल-अंदाज़ी करेगी? मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, इसमें साला वर्ड चल जाता है और पूरी दुनिया में फ़ेमस हो जाता है, लेकिन ऐसी 10 फ़िल्में, 20 फ़िल्में मैं आपको गिना सकता हूँ, जिनमें साला शब्द बैन है, म्यूट कर दिया गया है। कौन कर रहा है? सरकारी तंत्र कर रहा है। इस पर भी सवाल उठाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो हमारा पूरी बातचीत है कि हम कैसे किसी समाज में रहते हुए एक व्यूअर की तरीके से, एक समाज के एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे हम देखें कि मेरे सिनेमा देखने के बाद सिर्फ़ मुझ तक नहीं है, मैं उसको डिकोड करके दूसरे व्यक्ति को भी दूँगा। क्योंकि हम मीडिया में तो यही पढ़ते हैं कि अगर मैंने कोई मैसेज ग्रहण किया तो हम उस मैसेज को किसी दूसरे मास तक ले जाएँगे। और हम जब किसी दूसरे सोसाइटी तक अपनी बात को रखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अपना मसाला डालेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ऐसी ऐसे जब मैसेजेस को देखें, ऐसे संदेश को अपनी फ़िल्मों के ज़रिए देखें, तो कोशिश करें कि जीवन में संविधान उतरे, संवैधानिक मूल्य उतरें, और उस मूल्य के साथ सिनेमा को इंटरप्रेट करें, और इंटरप्रेट करने के बाद कोशिश करें कि वो सवाल भी उठाए जाएँ और आप उनको वहीं रोक दें। नहीं तो कोई भी पुलिस वाला आकर के आपके घर से किसी भी व्यक्ति को उठाएगा और आपको ये लगेगा कि तो सही है, जायज़ है, क्योंकि चुलबुल पांडे कर सकता है ऐसा, या दृश्यम का वो सीन मुझे याद आता है, वो बार-बार कर सकता है। तब आपको सवाल पूछने का भी हक नहीं होगा कि आईडी की जो रेड है, वो रेड को भी मार सकता है। नहीं, रेड मारने का हक संविधान में नहीं है। आपके पास सब कुछ प्रूफ होना चाहिए, सब कुछ आपके पास पहले से जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप वही होगा जो सिनेमा ने दिखाया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ़िल्म मेकर, श्याम बेनेगल जैसे राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई। तभी उसी का नतीजा है कि आज हमारे सामने अमूल जैसी कंपनी खड़ी है, जो मंथन और जिस तरीके की फ़िल्में हमने देखी हैं अपनी सोसाइटी में, जिस तरीके से आज हम सिनेमा देख रहे हैं, जिसमें अलग तरीके की धारा बह रही है, उससे हमें इंटरप्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। नहीं तो जो नई पीढ़ी है सर, वो नई पीढ़ी, उसको यही लगेगा कि सिनेमा ऐसा ही होता है, सिनेमा ऐसा ही चलता है, क्योंकि पुरानी फ़िल्में, जो 70 के दशक की फ़िल्मों का देखने का आज कोई प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास नहीं बचा है। दूरदर्शन था, उसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी जो पब्लिक टीवी है, जो टीवी चैनल आज के हैं, उसमें मैंने सुजाता नहीं देखी, उसमें मैंने मदर इंडिया नहीं देखी, उसमें मैंने नया दौर नहीं देखी, उपकार नहीं देखी, ना आपको देखने को मिलेगी। जब आपको देखने को नहीं मिलेगी, तब आपको ये मनीष लगेगा जी, कि सिनेमा। मनीष जी, अब मेरे ख्याल 1 आध मिनट में इसको आप सम अप कर दें, हाँ, है ना? क्योंकि अब 15 मुझे मिनट रह लगता गए है अपने पास। हाँ। जी सर। तो अब मुझे लगता है कि जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो संवैधानिक मूल्यों के साथ सिनेमा जब देखें आप, तो सिनेमा देखते हुए इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। वो इंटरप्रिटेशन जब आप अपने बातचीत में, अपने जीवन में लेके आएँगे, तो आप उसको उसी ढंग में रखें, जिस ढंग में आप महसूस करते हैं, और एक भारतीय के तौर पर आप उसे ऑब्ज़र्व करके आगे बढ़ें। यही मेरा कहना है, और आप सभी को एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जीवन में संविधान उतारने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम एक भारत को जिस तरफ भी ले जाना चाहते हैं, वो उसी में जाएगा। बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए सर। आभार मनीष जी। आपने बहुत विस्तार से इस बात को रेखांकित करते हुए कि जीवन में संवैधानिक मूल्यों को हमें उतारना होगा, उनका अनुसरण करना होगा, उन्हें जीना होगा, तभी हम फिल्मों को सही परिप्रेक्ष्य में देख समझ पाएंगे, और जो चुनौतियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं
उनकी ओर आपने रेखांकित किया। बहुत अधिक विस्तार से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, हार्डली 15 मिनट है अपने पास, ये सत्र फिर बंद हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र इसमें जुड़े हुए हैं, किसी का कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई टिप्पणी हो, कोई सवाल हो तो वो आमंत्रित है। कोई भी मित्र कुछ कहना चाहे। मेरा ये एक सवाल है कि फिल्मों में, अधिकतर फिल्मों में दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक भाईचारा और एक उसका विरोध। जैसे मार पीट, जो संविधान है ये हमें इजाजत नहीं देता, तो क्या हमारा संविधान इससे प्रभावित नहीं होता? और ये जो हमारे आइडियल रहते हैं सिनेमा के, उनको ही देखकर हम सीखते हैं। हमें कहा जाता है कि अच्छी चीजें सीखो, तो बुरी क्यों ना सीखें? जब दो चीजें परोसी जाती है, सामने आती है, तो बुरी क्यों ना सीखें? मुझे सवाल मुझसे है। हाँ मनीष जी, आप भी बताइए, या शेफाली जी शेफाली, ठीक है। यदि हो, स्मृति छोड़ चुकी है। हाँ, सिनेमा, मुझे लगता है कि जो सिनेमा देख रहे हैं तो हमें, जैसे देश में मीडिया लिटरेसी की कमी है, आज भी हम जब जानते हैं कि मीडिया लिटरेसी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, तभी हम एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखें किसी में, एग्जांपल के जरिए आपकी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक विज्ञापन है जो पहले हमें बताता है कि रूसी एक बीमारी है, फिर आपको वही विज्ञापन आपको ये बताता है कि नहीं हमारे पास उसका इलाज भी है, और आपको वो उसी में पैसे में बेच देता है। तो इसी तरीके से मीडिया का कंटेंट है कि आपको समझना है कि आपको लेना है या नहीं लेना, डिसाइड आपको करना है। कंज्यूमर हैं आप, मीडिया के कंटेंट के कंज्यूमर हैं आप। तो कंज्यूमर के तौर पर आप विवेक के आधार पर फैसला लें कि आपको भाईचारा पसंद है या मारपीट पसंद है, क्योंकि सिनेमा बन रहा, ज्यादा सिनेमा बन रहा है और समझने वाले लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर यही है कि कंज्यूमर के तौर पर आपको अपने राइट्स पता है, आपका अपना विवेक है, और उस विवेक के आधार पर आप फैसला लें। जी हाँ साहब, और कोई मित्र कुछ कहना चाहें? हाँ हेलो। हाँ बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ हेलो जी सर, आशीष रंजन पत्ता, छात्र मगध विश्वविद्यालय से। हाँ, माननीय बहुत संक्षेप में कोई सवाल हो। हाँ जुड़ने का अवसर मिला इससे पहले भी। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि सर फिल्म में जो कई बार सामाजिक तत्व जो दिखाए जा रहे, सीन वगैरह सब जो दिखाई जाती है, तो क्या सर वो सीन जो है वो बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सिनेमा में अगर क्या कैसा सिनेमा बन रहा है उसके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि सिनेमा रियल बेस्ड है, कहानी है। तो बैंडेड क्वीन हमने देखी है, बैंडेड क्वीन में जरूरत थी उसकी तो रखी गई। अगर उसकी जरूरत नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एक तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, तब वहाँ आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप व्यूअर, अच्छे व्यूअर हैं, क्रिटिकल एनालाइज कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फिल्म में कौन सा सीन किस लिए रखा गया है। बहुत स्मार्टली उसको, सिनेमा में जो सिनेमा बना रहे हैं वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़ाए लोग हैं, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो मीडिया लिटरेट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सिनेमा में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है अपने पास। हाँ डॉक्टर शील, कुछ कह रही हैं आप? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। बहुत नॉलेजेबल ये वेबिनार रही, और डॉक्टर स्मृति को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आपके बारे में तो सर मैं क्या ही बोलूं, हमेशा इट्स अ ट्रीट टू हियर टू लिसन टू यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सर कि जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम है, जो अभी हमारे समाज में सिनेमा परोसा जा रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज आती हैं, बहुत विवादास्पद स्थिति हो जाती है, डिबेट्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, सोशल मीडिया में उन्हें प्रमोट किया जाता है। मैं खुद कभी कभी अगेंस्ट हो जाती हूँ, आई स्विच ऑफ माई टीवी की लैंग्वेज खराब है, मत देखो, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि फिल्में समाज का दर्पण है, तो मैं बस इस पूरे मुद्दे पे जो एक विषय है जिस पर हमें चर्चा थोड़ा सा और गहन में करनी चाहिए थी, वो ये थी कि आज का जो टाइम है सर, और उस टाइम से रिलेटेड जो फिल्में, वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सेंसिटाइज कर रही हैं सर। जैसे रेलवे मैन की बात उन्होंने पिछले वक्तव्य में मैम ने कही, या कल मैंने कोवैक्सीन पर देखी WHO ने क्या स्टेप्स लिए थे और इंडिया को कैसे पीछे किया गया था, बट वी फॉट एंड वी केम फॉरवर्ड। ऐसे जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा हो रही है, और फिल्में उनको परोस रही हैं, एक अच्छी रिसर्च कर रही हैं, फैक्ट्स लेकर आ रही हैं, मीडिया का रोल भी उसमें समझाया जा रहा है।
तो ऐसे में हम सिर्फ पुरानी जो 1950 या 60 या 80 के दशकों की फिल्मों का एग्जाम्पल ना लेकर आज के भी कुछ ऐसी चर्चित फिल्मों का एग्जाम्पल ले और उन्हें प्रमोट करें, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी बदलाव जो हम लोग चाह रहे हैं वो बहुत हद तक पॉसिबल है और हो जाएगा। तो मैं काफी पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात रखना चाह रही हूँ कि बहुत डायरेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो स्टेप्स ले रहे हैं और हमारे सामने ऐसा कंटेंट परस रहे हैं जिसको देखकर हम अपनी विचारों की शक्ति को आगे पॉजिटिव नोट तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक, और भली भांति बदलाव ला सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी वेबिनार थी सर, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शील, मुझे लगता है जहां तक भाषा की बात है इस पर अलग से एक वेबिनार हो सकती है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि राजनीति में भाषा का संयम, जिस तरह से हमारे इस चुनाव प्रचार में अभी जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, राजस्थान सहित, जिस तरह की भाषा हमारे राजनेता बोल रहे हैं वो किस तरह का असर डाल रही है। और जो बात आई कि जो फिल्मों में हो रहा है या समाज में हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। पुरानी फिल्मों के उदाहरण के पीछे तो यही भाव है कि हमारा अतीत किस तरह का था, जिन मुद्दों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं उन पर यदि 70 साल पहले कोई फिल्मकार काम कर रहा है तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी बात थी। जिस समय हम इतने सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए थे, उस समय भी ऐसे युगदृष्टा या प्रभावशाली और रचनात्मक फिल्मकार थे जिन्होंने इन मुद्दों पर फिल्में बनाई। ये कोई छोटा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस दृष्टि से लोगों को जानकारी मिले, मुझे लगता है कि हिस्ट्री से, हिस्ट्री से हम हमेशा सीखते हैं, तो उसको एक रूप में बांधकर आगे अभी के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एक पॉजिटिव जो नोट है उसी पर मैं आ रही थी सर। तो बहुत चलिए अब इसको अपन समाप्ति की ओर ले जाते हैं। मैं भारतीय विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष आयुषी सचदेव चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें और हमारे पार्टिसिपेंट्स को ई सर्टिफिकेट और ई बुके, ई मेमेंटो उनको प्रदान करें। आयुषी जी। Thank you so much, sir. Thank you for giving me this platform. बहुत ही अच्छे से I will say that you have blended this topic on this occasion. सिनेमा एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे संविधान को रखते हुए सिनेमा वर्क कर रहा है, और बहुत आने वाले समय में जैसे जैसे वेब सीरीज की बात हो रही है या OTT प्लेटफॉर्म पे काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिल रही हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, आज की जो टेक्निकल एक हमारे साथ मुश्किल है जिसे हम सून ही जल्द रिजॉल्व कर देंगे, उसके लिए मैं अपने सबसे पहले चाहूंगी कि एक्सपर्ट स्पीकर्स को, जिन्होंने आज का बहुत अच्छा पूरा माहौल बना दिया, ऐसा लग रहा था हम मूवी को देख रहे हैं, परख रहे हैं, जो जो उन्होंने सीन, पिक्चर, स्टोरी रिफ्लेक्ट करी अपनी बातों से, तो उसका विजुअलाइजेशन हुआ। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी स्मृति मैम को, शिफाली मैम को और डॉक्टर मनीष सर को। आपने कहा था कि आप आखिरी में जुड़ रहे हैं और बहुत आपके लिए मुश्किल वाला समय है, बट आपने बहुत ही बखूबी अच्छा कहा। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ भारतीय विद्यापीठ एंड कम्युनिकेशन टुडे टीम। मैं आप तीनों के बहुत आभारी हूँ और थैंक यू कहती हूँ जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमें इतना नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सर। संजीव सर और एमएन हुडा सर को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ये वेबिनार सीरीज को विजुअलाइज करा। उनकी ही मोटिवेशन है कि आज संडे को सुबह सुबह के दिन हम लोग बैठे हैं और इतनी अच्छी टॉक के साथ इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड माय डियर पार्टिसिपेंट्स, डिग्निटरीज, जिन्होंने दूर दूर से जुड़ के हमारे को सहयोग करा, आपके इसी सहयोग के साथ हम चलते रहेंगे और सून हम इस 100 की सीरीज को भी पार कर जाएंगे। सो थैंक यू ऑल। मैं अपने गेस्ट स्पीकर्स के लिए ई सर्टिफिकेट प्रियंका मैम को कहूंगी कि प्लीज प्रेजेंट करें। सर, इट इज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। शिफाली मैम एंड मनीष सर, स्मृति मैम अभी हमारे साथ नहीं है, बट हम उनको भी प्रेजेंट करते हैं। This The certificate is for the purpose of your remembrance. तीनों सर्टिफिकेट और तीनों मेमेंटो। These all will be mailed to you. Expert speakers के साथ हम ये मेल पे शेयर भी कर देंगे। So thank you so much. Thank you everybody for joining us. और मैं पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी कि that feedback link is there in the chat window. Please tap on to that link and generate your certificate of participation for today's webinar.
सो सभी पार्टिसिपेंट्स फीडबैक लिंक के जो आपको सर्टिफिकेट के लिंक को हमने शेयर करा है उसको फिल करें। करेक्ट डिटेल्स आप लोग एंटर करें, अपना नाम, अपना एरिया। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं एंड जनरेट योर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। 5 रिकॉर्डिंग बंद मिनट्स कर हमारे पास हाँ। सर, हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो जो सर्टिफिकेट के लिए रह जाएंगे पार्टिसिपेंट्स उनके लिए आपको ये सोल्यूशन